Hello students, in this lecture I will discuss the most important function, reciprocal function, square root function, cubic function and cube root function. So start from first. This is reciprocal function and it is defined as fx is equal to 1 upon x, that is y is equal to 1 upon x. So now we discuss the shape of this function. So as x greater than 0, y greater than 0. जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, एंड व्हेन x लेस देन 0, y लेस देन 0. अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा. x पॉजिटिव y पॉजिटिव मींस प्लस प्लस, x नेगेटिव y नेगेटिव मींस माइनस माइनस. It means this graph either in first quadrant or in third quadrant. So these are the coordinate axis and this point is origin, this is x axis and this is y axis. So either in first quadrant or in third quadrant. And one more point, suppose x is positive and x increases. So as x increases, y decreases. Suppose x is 1, so it is 1 upon 1, then 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 and so on. It means as x increases, y decreases. So shape of this function is like this. As x increases, y decreases, but it not touches x axis because y never becomes 0. When y is 0, then x is infinity, but infinities are not defined, so the value of y never becomes 0. It means this function does not touches x axis. जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये क्लोज होता जाएगा x एक्सिस के, पर कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा. ठीक उसी तरीके से ये फंक्शन y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा. एंड सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट सेम शेप एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक दिस. सो दिस इज द शेप ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट. Now we discuss the domain and range of this function. So y equal to 1 upon x, and when x is 0, y is not defined. It means the domain of this function is all real number except 0. This function is defined for all values of x except 0. So what is the domain of this function? And domain of this function is all the real numbers except 0. And what is the range? Range of this function means the value of y. आप ग्राफ से ध्यान दीजिए, ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर भी है, x एक्सिस के नीचे भी है. इसका मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन y की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, because the graph never touches x axis. So what is the range of this function? Range of this function is same all the real number except 0. So this is domain and range of this function. इस शेप का एक स्पेशल नाम है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो. This is known as rectangular. This is known as rectangular hyperbola. तो आप लोग हाइपरबोला को 11th क्लास में पढ़ चुके हो. ये भी हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है. जो आपने हाइपरबोला पढ़ा 11th में, उसकी शेप कुछ इस तरीके की थी. ये भी हाइपरबोला का स्पेशल केस है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया. सो दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसकी एसेंट्रिसिटी है वो √2 होती है. √2 होती है इसकी एसेंट्रिसिटी. और ये जो फॉर्म है वो xy = c² की फॉर्म का होता है.
अगर कोई फंक्शन x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की शेप का है तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। सपोज इफ c is equal to 1 then xy is equal to 1, this implies y is equal to 1 upon x। लेकिन इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस या y एक्सिस नहीं है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एक्सिस है these are y is equal to plus minus x and x axis and y axis are the asymptotes। Asymptotes means tangent at infinity, so x axis and y axis are the asymptote of this curve। अब मैं आपको इस फंक्शन के एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं। फिजिक्स में कई जगह इसका एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ की शेप क्या होगी, तो ये मैंने आपको एक्सिस बना दी है। आप लोग एक बात पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा वाई एक्सिस पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आपको पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, 1 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो r आपका यहाँ बनेगा। और दूसरा जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए पोटेंशियल को बनाया जाएगा y एक्सिस पर। एक चीज का ध्यान दीजिए, हमने इधर का और इधर का नहीं बनाया है, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव लेके चले डिस्टेंस को। और देखिए ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो इस तरीके से जो इसकी शेप होगी वो रेसिप्रोकल फंक्शन वाली ही शेप यहाँ पर होगी। अगर आपने फिजिक्स कायदे से पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपने वॉइस लॉ के बारे में पढ़ा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दैट इज B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। और अगर आप इसको यहां बनाना चाहें ग्राफ पर तो सेम बिल्कुल यही बनेगा, B फॉर वॉल्यूम और P फॉर प्रेशर। वन मोर एग्जांपल, अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। और उस ग्राफ की शेप भी बिल्कुल यही होती है, दैट इज यहां पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और यहां पर बनेगी डिस्टेंस। अब हम लोग एक और फंक्शन का डिस्कशन करेंगे और वो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें फर्क है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो y हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस नहीं आएगा। तो जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके की बनती है, दिस इज द शेप ऑफ दिस फंक्शन लाइक दिस, डिक्रीजेस मोर रैपिडली 1 अपॉन x। सो दिस इज y, इट इज x एंड दिस पॉइंट इज द ओरिजिन। इन दोनों में दो डिफरेंस है, पहला ये है कि ये y कभी नेगेटिव नहीं होता है और दूसरी बात ये है कि ये बहुत तेजी से घटता है, इसके कंपैरिजन में बहुत तेजी से घटता है। इसका एग्जांपल फिजिक्स में आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे और ये आपका शेप जो ग्राफ की है वो यही आएगी, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है ध्यान से तो ये शेप जो है
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर डिस्टेंस, एंड दिस पॉइंट इज द ऑरिजिन। अगर हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, y is equal to 1 upon x, this implies dy upon dx is equal to minus 1 upon x square, and this is less than 0 for all x belongs to real number except 0। इसका मतलब है ये फंक्शन थ्रू आउट डोमेन में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव का नेगेटिव होना ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है जो दिया गया फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दो, जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y घटता है, और अगर आप इस हिस्से पे ध्यान दो तो x तो बढ़ता है, इधर ध्यान दो x बढ़ रहा है लेकिन y जो है वो घटता जा रहा है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज ऑलवेज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ वी कंसीडर वन मोर पॉइंट। इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x axis, then this line cuts the curve at single point. It means this function is one function. सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी, इसका मतलब ये वन फंक्शन है। और अगर हम इस फंक्शन को यहां से डोमेन से रेंज की बात करें तो ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज ए वन ऑन टू फंक्शन, इट मींस दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। इफ दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, सो व्हाट इज द इनवर्स? तो सपोज fx equal to y, this implies x is equal to f inverse y. So what is fx? Fx equal to 1 upon x, and this is equal to y, and from here you get x equal to 1 upon y. So what is x? F inverse y, and this implies f inverse y is equal to 1 upon y. And if you replace y with x, then you get f inverse x is equal to 1 upon x, and we get a very interesting result that this function is inverse of itself. Now we consider the next function. This is square function, and this function is fx is equal to x square, and that is y equal to x square. आप लोग इसे ध्यान से देखो, y is equal to x square means this function is second degree in x and 1 degree in y, यानी x में 2 डिग्री का है और y में 1 डिग्री का। अगर कहीं पर भी कोई इक्वेशन जो एक वेरिएबल में लीनियर हो और दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो तो वो इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये पैराबोला की, आप सब लोग जानते हो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। दिस इज द पैराबोला, और इसकी जो शेप होती है पैराबोला की वो कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। नाउ वी कंसीडर व्हाट इज द domain of this function and range of this function. So what is the domain? ये जो फंक्शन है वो x एक्सिस के राइट में भी है और y एक्सिस के राइट में भी है और y एक्सिस के लेफ्ट में भी है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। अगर आप इसको रेंज की बात करो और इसकी शेप देखो तो शेप से आपको नजर आएगा कि ये जो फंक्शन है शेप के अकॉर्डिंग ये कभी भी x एक्सिस से नीचे नहीं है, और x एक्सिस से नीचे ना होने का मतलब है कि y की जो वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। y की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। 0 y की वैल्यू हो सकती है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0।
Next important thing, if you draw a line parallel to x-axis, then this line cuts the curve at 2 points. It means there are two values of x for which the value of y is same. For an example, if x is equal to 3, then y equal to 3 ka square, that is 9. If x is equal to minus 3, then y is minus 3 का स्क्वायर, दिस इज 9. इट मीन्स जब x की वैल्यू माइनस 3 है, जब x की वैल्यू प्लस की 3 है, तो दोनों केसेस में जो y की वैल्यू है वो 9 है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन. अगर दो भी पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जहां पर सेम वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू सेम हो जाती है, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है, क्योंकि ये लाइन कर्व को दो पॉइंट पर काटती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन. और इसलिए हम कहेंगे कि इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस कर्व dy upon dx is equal to, then you get 2x. So dy upon dx may be positive or may be negative according as x. If x is greater than 0, if x is greater than 0, then dy upon dx is greater than 0. It means जब x पॉजिटिव है, माने राइट साइड में है, जब x पॉजिटिव है तो dy अपॉन dx भी पॉजिटिव है, और dy अपॉन dx का पॉजिटिव होना रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग फंक्शन. तो 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर x नेगेटिव है तो फिर y भी नेगेटिव होगा, dy अपॉन dx भी नेगेटिव होगा, और dy अपॉन dx का नेगेटिव होना रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग फंक्शन. आपको नजर भी आ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y घटता है. तो x नेगेटिव के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब x पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. इफ वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन भी y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो इसका मतलब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी. और ये फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. और आप सब लोग जानते हैं इसकी शेप इस तरह की होती है, x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन. क्वेश्चन है क्या ये फंक्शन है? आंसर है दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देन दिस लाइन कट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स. इट मींस the value of y is different for x. Suppose x equal to 4 and this implies y square equal to 4 and then y is equal to plus minus 2. तो अगर y की वैल्यू 2 है प्लस के और y की वैल्यू माइनस के 2 है, तो उस केस में x की वैल्यू 4 है. इसका मतलब है एक एलिमेंट की दो इमेजेस मिल रही हैं. तो अगर कभी भी एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज मिलती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है. ये मैंने आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. अब एक कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर कोई लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और वो लाइन कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर काटती है, तो वो जो कर्व है वो एक फंक्शन नहीं होगा. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली अ कर्व. मैं आपको एक और एग्जांपल दूं. सपोज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. आप सब लोग जानते हो उसको. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन because if you draw a line parallel to y axis, then this line cuts the curve at 2 points. So this is not a function. लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें और कहें y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. वैसे तो यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा. सपोज हम नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं तो ये आएगा. और दिस इज अ फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का एग्जांपल है. और यहां से मालूम पड़ता है कि जो y कभी नेगेटिव नहीं होगा और ये हिस्सा इसमें से हट जाएगा. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन.
and this point is a0 and this point is minus a comma 0, and this function represent a semicircle. Now we consider the next function, square root function, and it is defined as fx is equal to square root of x. As we know that fx equal to y, so y is equal to square root of x. So what is the shape of this function? As we know that square root of any number cannot be negative. जो किसी चीज का स्क्वायर रूट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब है ये y हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जो x है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कि अगर आपने x को नेगेटिव ले लिया तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर कभी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इमेजिनरी हो जाता है। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो रियल फंक्शन की कर रहे हैं, इसलिए न तो कभी x नेगेटिव हो सकता है और न ही कभी y नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की बनती है। दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए लेफ्ट साइड में नहीं आया है, y की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए ये डाउनवर्ड नहीं आया है। इसकी शेप इस तरीके की बनेगी और ये कुछ नीचे की तरफ झुकता जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप अंडर रूट निकालोगे तो उनके बीच का गैप कम होता जाएगा। अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 के बीच का गैप, फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच का गैप, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 के बीच का जो गैप है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। इसका मतलब ये तो नीचे की तरफ जाता है। सो व्हाट इज द डोमेन? Domain of this function is from 0 to infinity. And what is the range of this function? Range of this function is from 0 to infinity. And if you draw a line parallel to x-axis, then this line cuts the curve at single point. So this is an example of 1-1 function. Now we discuss another function, that is cubic function. And this function is defined as fx is equal to x cube or y is equal to x cube. So power is 3. It means when x is positive, x cube is positive. When x is negative, x cube is negative. तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। So what is the shape of this function? अगर हम पॉजिटिव की बात करें, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ेगा। आप यहां से देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इसका मतलब जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है। दूसरा, अगर x नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब है ये घटेगा। सो दिस इज द shape of cubic function y is equal to x cube. Now we find what is the domain of this function. x के राइट में भी है, x के लेफ्ट में भी है, इसका मतलब है इस फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं तो y में ऊपर भी है नीचे भी है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी होगी रियल नंबर। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन इस फंक्शन को सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1-1 फंक्शन। सपोज इफ यू डिफरेंशिएट इट देन यू गेट dy upon dx. So dy upon dx is 3x square. Differentiation, and this is greater than or equal to 0 for all x belongs to real number. क्योंकि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, therefore it is an increasing function. This is increasing function. मतलब x के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ती है। मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा। अगर हम ऊपर की बात करें, सो दिस कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड। इस तरह के कर्व अपवर्ड होते हैं, कॉनकेव अपवर्ड। अगर मैं इधर की बात करूं, सो दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड। इट मींस राइट साइड में कॉनकेव अपवर्ड है, लेफ्ट साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड है। इट मींस एट x इक्वल टू 0
this function changes its nature. Therefore, x is equal to 0 is called point of inflection. This point is known as point of inflection. फंक्शन रियल से रियल डिफाइंड है, रियल से रियल, और 1 1 भी है, और ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन और रेंज सेम है। फंक्शन रियल से रियल डिफाइन करोगे, रेंज भी रियल नंबर है, कोडोमेन और रेंज सेम होने की वजह से ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। और अगर आपका इसका इनवर्स फाइंड करोगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका जो ग्राफ होता है क्यूब रूट ऑफ x का, वो कुछ इस शेप का होता है। तो यहां तक ये 4 फंक्शन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है।